So today our speaker is Mr. Dr. Amit Kumar Mato. He is a keynote speaker, financial transformational coach. He holds a PhD in financial planning from the Commonwealth Vocational University, Kingdom of Tonga. He is a chartered wealth manager from the American Academy of Financial Management and certified master trainer from IATD. He has over 2 decades of experience in financial sector. With his in-depth knowledge of financial planning and wealth management, he has helped numerous people achieve their personal, professional, and financial goals. His training, sales, and team management skills are exemplary. He is an excellent storyteller and a bi-directional communicator who has successfully conducted 250 plus sessions and empowered over 10,000 plus people. He is on a mission of empowering 10 million people through financial literacy by 15th of August 2040. Let's all sit up and welcome our trainer of the day, Dr. Amit Kumar Mato. Thank you. All over to you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much for the wonderful introduction. Thank you. So, good afternoon once again, friends. I hope you all are doing wonderful. So, it's Sunday afternoon. Once again, it's great to see you all after a long time, because I'm getting this opportunity after a long time in this platform. Every time I came into this platform, I really enjoy interacting with you guys. So I hope you two are excited, and that's the reason you are here, correct? Okay, so before I begin, I would like to understand from all of you, shall I take the session in English only, or shall I take the session in mix of Hindi and English? Can you just respond me in the chat box, please? And it would be great if all of you can switch on your video so that I can understand. I'm interacting with you. Anything will do. I'm okay with both. Okay, great. Thank you. Thank you. So I would like to start the session with a story. I hope everybody likes stories, right? Since our childhood, we have been, listening and learning a lot from stories from our grandparents, parents, and I feel the stories are the best medium to learn something, correct? As today's our topic is effective financial planning, and we are going to, find a new you in yourself. The session is going to be very, very exciting and interesting. Believe me, I don't know how many of you are like interested about this subject called financial planning, but believe in me, if it is interesting for you, end of the session, the level of interest is going to be very high. And if some of the reason, because this financial planning or finance, I have seen people that take less interest, or for few people it is may sound boring. For them also, it's assurance from my end, it's going to be interesting after today's session. So let me ask you, how many of you are really excited now? If you are excited, can you just type in the chat box excited? So there are 25 people in the room, only 2-3 people are responding. I want 100% participation. Yo, that's great. That's kind of energy really shows get set go energy, correct? Yeah. So let me start the session with a story. The story is like this. So there was a Brahmin family. There was a Brahmin family, and normally, you know well, Brahmins are known for puja part and all, correct? So normal आम आदमी
के कंपैरिजन में ब्राह्मण फैमिली में पूजा पाठ कुछ ज्यादा ही होते हैं, राइट? सो इनके घर में भी बहुत ज्यादा पूजा पाठ होते थे। बट देन देयर वाज अ प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम वाज उनके घर में बिल्लियां बहुत थी, और ये बिल्लियां जो है बहुत डिस्टर्ब करती थी, स्पेशली पूजा पाठ के टाइम पे। बाय नेचर बिल्लियों का जो नेचर होता है, कभी सामान इधर गिरा देना, उधर गिरा देना, बिखेर देना, उधर मचाना, ये सारी चीजें जो है बिल्लियां करती रहती थी। तो इससे इनको बहुत परेशानी होती थी। सो इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन क्या निकाला कि जब कभी भी पूजा करें, उन बिल्लियों को एक कोने में ढक दें एंड उसके बाद पूजा करें। तो इससे क्या हुआ कि बिल्लियों से जो डिस्टरबेंस होती थी वो डिस्टरबेंस होना बंद हो गया। एंड अब जब भी पूजा करते थे बिल्लियों को ढक देते थे, फिर पूजा करते थे। ठीक है। सो ये जो है उनके बच्चे देखते हुए बड़े हुए थे, और जब वो बड़े हो गए, उनकी टाइम आई, सो वो भी सेम चीज रिपीट करने लगे। जब भी पूजा पाठ होती थी तो उनको बिल्लियों को कवर कर देते थे और पूजा पाठ करते थे। सो ये जो सिस्टम जो है बिल्लियों को ढकने का, कब कस्टम में बदल गया पता ही नहीं चला। आज कई जनरेशन बीत गए, आज उनके घर में बिल्लियां नहीं है, बट आज के जो जनरेशन है वो क्या करते हैं, पूजा करने से पहले पहले बिल्लियों को ढूंढ के लाते हैं बाहर से, उनको कवर करते हैं एंड उसके बाद पूजा पाठ करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टोरी यही एंड होती है, एंड इट इज वेरी मच रिलेवेंट विथ आर टुडेज सिचुएशन, स्पेशली इन केस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है। आप में से बहुत लोगों की फाइनेंशियल जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू, आपकी फाइनेंशियल जर्नी आपने कब स्टार्ट करी और कैसे स्टार्ट की? आई एम श्योर आप में से भी मैक्सिमम लोगों के जो पहले फाइनेंशियल एडवाइजर रहे होंगे, आपके फादर रहे होंगे, यार में ग्रैंडफादर हैं तो वो रहे होंगे, या फिर कहीं से तो कोई एक इंसान जिसको पता चल जाता है कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट हुई है जॉब से या बिजनेस से, जिसको हम लोग LIC एजेंट बोलते हैं, वो घूमते फिरते आ गया और आपसे एक पहला LIC इन्वेस्टमेंट करवा लिया, राइट? सो बेसिकली अगर आज के डेट में आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, या फिर इस तरीके के किसी एजेंट से बात करेंगे और उनको पूछेंगे हाउ टू स्टार्ट, बोलेंगे FD कर लो, RD कर लो, PPF कर लो, है ना, पोस्ट ऑफिस स्कीम कर लो, या फिर एक LIC तो जरूर से कर लो। बट देन बाइंग ए प्रोडक्ट, एंड दैट टू सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि आज के डेट में शायद रिलेवेंट भी नहीं है, that is not called a effective financial planning, friends. So what is that effective financial planning then? So first of all, we need to understand a plan is just a plan if it's not going to work in that way. The effective plan is a plan which need to be executed and help you to achieve all your financial goals, right? So I was just talking about the story. Let me come back to that again. If you are still at this age, you are investing in PF, PPF, FD, RD, post office schemes, and LIC. First of all, let me tell you, these are not investment as of now. These are the saving products. Now there is a difference in saving and investment. So when you save your money, first of all, you need to understand saving is for the purpose of keeping safe your money or parking your money in a safe place, and which can give you return or may not give you any kind of return. But then if it is giving you less than the return of existing inflation, then actually it is a saving only. Then what is investment? So investment means growth. So if you are parking your money in such a product where the return is more than inflation, then only you can consider there is a growth, right? So our today's session is going to be cover all these things only, so that you will have a proper and effective financial planning for yourself, right? So let's begin the session, friends.
So basically, financial planning, it's a combination of wealth creation, protection, and transferring of wealth. It's a combination of wealth creation, wealth protection, and transferring of wealth. Let's understand one by one. Now, there is something called a lifeline, our lifeline. It starts at point B and it ends at point D. If we see, B is nothing but birth and D is nothing but death. So our lifeline, it's divided into three parts. The first part, first 20-25 years, it varies man to man, where we lead a dependent life. We depend on our parent, we complete our education and prepare ourselves to lead in a better manner, or you can say for better future. The second part, we start our professional journey, maybe with a job or business, then marriage, then kids, family vacations, child's education, child marriage, dream car, dream house, correct? So if you'll see, all these are what? All these are basically milestone of our life. And by achieving all these milestones from, age of 25, कब हम 60 के हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है. And again, there is a big change in our life that is called retired life. When we entered into the age of 60, we get retired. And actually what happened, if you are into a job or a business or, any kind of activity where your income is very much linked with your retired age, you are earning highest, you can say. आप अपने लाइफ का सबसे ज्यादा इनकम कर रहे होते हैं and all of a sudden आपकी इनकम रुक जाती है. एंड उसके बाद बिना इनकम के अगले 20 से 25 साल आपको जीना होता है. सो बेसिकली द मैसेज इज वेरी क्लियर. while earning our earning age of say 30-35 years, इस 30-35 years में ही हमें अपने लाइफ के रेगुलर चैलेंजेस को तो अचीव करना ही है, साथ ही अपनी जो रिटायरमेंट एज है वो भी 20 से 25 साल का होता है, उसकी भी तैयारी हमें इसी एज पे कर लेनी होती है. एंड इफ यू विल सी, सो बेसिकली इन जनरल टर्म्स आल्सो बिटवीन बी एंड डी क्या होता है? सी. एंड सी फॉर व्हाट? सी फॉर चैलेंजेस. सो डोंट यू थिंक दीज आर चैलेंजेस ओनली? Vacation, child marriage, child education, dream house, dream car, retired life, all these are challenges only. And to achieve all these challenges and to complete it without any to achieve all these milestones without asking anybody's help, that is a real achievement, you can say. And for that we need a effective financial planning. So basically, to achieve all these challenges, we need C for cash, C for check, C for credit, and C for anything you take that comes between B and D, right? Now, so anything comes within first 3 years are called short-term financial goals. If comes between 3 to 10 years time, called medium-term financial goals, and after 10 years are called long-term financial goals. So anything, Nahid ma'am, not only C for choices, anything you take C for, it is that. So right, yeah. Now, why we need to create wealth? What is the need? So here I want to give you 2 examples. Can you just see? It's a cinematic cut of 1975, a very famous movie, Diwar. अमिताभ बच्चन का ये बहुत ही मतलब पॉपुलर मूवी था दीवार. 1975 का ये सिनेमा टिकट है. That time it was
you could get it at the rate of 3 rupees only. आज के डेट में अगर लेने जाएंगे तो कम से कम 300 रुपया पड़ेगा. इन द सेम वे अगर 2 जन आप लोग हैं तो ये मोती महल का रेस्टोरेंट का ये बिल है. It was just 216 rupees for 2 masala dosa and 2 cup of coffees. आज के डेट में कम से कम 240 लगेगा एंड इट डिपेंड्स, इससे ज्यादा भी लग सकता है. करेक्ट. सो ऐसा क्या हो गया, पहले 3 रुपया था, अभी 300 रुपया लग रहा है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? The reason is very much clear, and that is you also need money to fight an invisible evil, that is I for inflation. So it's the inflation which plays its own role, and over a period of time, because of this inflation, the same thing you need to pay higher if you are going to get it maybe in later ages, right? So 5 साल बाद सेम चीज को हमें ज्यादा पे करना होता है. So let's understand it more. The invisible eye, the inflation, how does it play? So at the rate of 6% of inflation, 30 years from now, from 2015 to 2045, 65, like that. Okay, so at this age, if your current expense, your lifestyle expense is say 30,000 rupees. आपका घर का खर्चा आज के डेट में 30 रुपया है. 10 साल बाद कितना लगेगा पता है? To lead the same kind of lifestyle, it will require 53,725 rupees at the rate of 6% of inflation. After 20 years, it will require 96,000, and after 30 years, to lead the same kind of lifestyle, it will require 1,72,000 friends. Lifestyle is going to remain same, but money will require more because of this inflation. Here I am considering 6% inflation rate only, but actually if you take the lifestyle inflation, it will be more than 10%. Now tell me, if you will simply keep your money idle, or if you will park it in your cupboard, in your piggy bank, or maybe saving account, or maybe the products like FD, RD, PPF, or somewhere where the return is less than 6%, 5%, 4%, like, do you think it's going to work? Never. Actually, over a period of time, the purchasing power of your money is decreasing. So it's very much similar like, एक चींटी जो है एक कुएं में फंस गई है. 10 मीटर का कुआं है और चींटी एवरीडे 6 मीटर चढ़ती है और 8 मीटर गिर जाती है. क्या लगता है चींटी कभी भी उस कुएं से बाहर निकल सकती है? क्योंकि एवरीडे 6 मीटर चढ़ती है और 8 मीटर गिर जाती है. इट मीन्स व्हाट? वो जहां पे थी वहीं रहती है एवरीडे. सो कभी भी वो 10 मीटर क्रॉस नहीं कर सकती है. अगर 10 मीटर क्रॉस करना होगा तो या तो उसको 1 गो में 10 मीटर चढ़ जाना होगा, तभी वो कुएं से निकल सकती है, या फिर उसका फिसलने का दर जो है कम होना चाहिए, तब हो सकता है. देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम निकल सकती है, राइट. बट इन दैट केस, इन दिस केस, अगर कहीं से भी, जो मैं वापस से स्टोरी में जस्ट रिलेट करने के लिए फ्रेंड्स, अगर कहीं से भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि अपने फायदे के लिए अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको रिकमेंड कर रहा है जहां पे रिटर्न 5%, 6% है, या फिर अननोइंगली सिर्फ सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आप अगर पीपीएफ, आरडी एंड अदर प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, तो शायद अननोइंगली आप कुछ गलत कर रहे हैं. मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा, बट here you need to understand, it's very much similar like, बिल्लियां अभी नहीं है बट बिल्लियों को ढकने की बात हो रही है. There was a time when these were the products were used to be hero, because FD, RD ये सब 12%, 15% रिटर्न दिया करते थे. 5 साल में पैसे डबल होते थे. उस समय इन्फ्लेशन रेट कम था और आज उल्टा हो गया. आज इन्फ्लेशन बढ़ गया है और FD, RD का रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, घट गया है, 6% हो गया.
there is something called rule 72. as per rule 72, if you divide 72 by current rate of interest, आपका पैसा जो रिजल्ट आता है उतने सालों में पैसे डबल होते थे. सो कहने का मतलब है जब 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था, मीन 72 डिवाइडेड बाई 12, इट मीन्स व्हाट, 6 ईयर्स में पैसे डबल होते थे. और आज उल्टा हो गया, अगर 6% है, सो 72 डिवाइडेड बाई 6 मीन्स 12 ईयर्स में पैसे डबल होंगे, which is not at all relevant. By the way, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि वी आर ग्रोइंग कंपनी, बट व्हाई ये इंडिया में पैसे जो है गिरते जा रहे हैं, आई मीन एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरते जा रहा है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वी आर ए डेवलपिंग कंट्री एंड द कंट्री व्हिच आर ऑलरेडी डेवलप. अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पे तो 2% है रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक एफडी में. अगर जापान की बात करें तो वहां 1% है रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक एफडी में. इट मीन्स व्हाट, वहां पैसे जो है डबल होते हैं 36 साल में और 72 साल में. सो दैट्स द रीजन वहां कोई बैंक में पैसा रखता ही नहीं है. एंड इंडिया की अगर हम बात करें तो इट्स ए डेवलपिंग कंट्री, इट्स गोइंग टू बी डेवलप कंट्री. सो धीरे धीरे उस चीज को मैच करने के लिए आने वाले दिनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट और गिरेगा. सो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू मेक इट अवेयर एंड start putting investing in money in such product जहां पे आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिले और आपको अपने गोल्स को अचीव करने में आसानी हो. यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज की अगर हम बात करें, वहां 70-80% लोग म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं. 20-30% लोग ही बैंक में पैसा रखते हैं. और इंडिया की बात करें तो जस्ट उल्टा है. 140 करोड़ जनता में सिर्फ 40 करोड़ या 42-43 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है. और म्यूचुअल फंड इक्विटी की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शायद 10 करोड़ भी नहीं है. एक चीज समझने की जरूरत है, आने वाले दिनों में पैन कार्ड होल्डर की संख्या बढ़ेगी एंड म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी. तो आज मार्केट 40 सालों में 100 से 60,000 की जर्नी तय की है. ये कल को 1 लाख भी होगा, 2 लाख भी होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता. वी आर ए डेवलपिंग कंट्री. इस चीज को ध्यान, टेम्पररी ऊपर नीचे हो सकती है. कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, आज से ही अपना माइंड को ओपन करें एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग. वी ऑल आर एट राइट कंट्री एंड वी हैव राइट इन्वेस्टमेंट, राइट प्रोडक्ट्स टू इन्वेस्ट, राइट. सो सेशन को आगे बढ़ाते हैं. सो फ्रेंड्स, 30,000 का लाइफ स्टाइल, 30,000 of your lifestyles as on today, 30 years after will require 1,72,304 rupees. This is the impact of inflation, and the impact is not only in one area, in all the area. First, understand the area of education, which is mandatory for all. In the year 2000, the cost of MBA, MBBS, and engineering was very less. 2.5 lakh, 4.5 lakh, and 1.5 lakhs. This is government college data maybe. In 2010, 6.5 lakh, 12 lakh, 4 lakh. In 2020, 12.5 lakhs, 24 lakh, and 8 lakhs. It's going to be increase only if we take the private college data. Again, this will be higher. Estimate of marriage expenses in 2000, 2010, and 2020. The cost of 2 lakhs in 2010. At the rate of 10% of inflation, 5 lakh 2,000. In 2020, 13 lakhs. 20 lakhs of expense. In 2010, 51 lakhs. Whereas in 2020, it will cost 1.34 crores. अब आप देख लीजिए, आपकी शादी में आपके पेरेंट ने कितना खर्च किया था. आप अपने बच्चों के शादी में आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद जो होगा, 10% इन्फ्लेशन रेट से क्या खर्चा बढ़ेगा. नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन, वेदर आर यू रेडी फॉर इट और नॉट. नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, रिटायरमेंट. नॉर्मली लोग रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग नहीं करते हैं. वो सोचते क्या है, अभी तो बहुत टाइम है. बट फ्रेंड, लेट मी आस्क यू, डू यू थिंक we all know that we are going to retire at 60, or people plans for early also, 55, 50 also. ये आपको पता है पहले से. जब पता है तो थोड़ा थोड़ा करके उसके लिए क्या तैयारी नहीं की जा सकती है.
बट लोग बोलते हैं कि हमारे पास अभी टाइम है, कर लेंगे बाद में। क्या आप 2 साल 5 साल पहले तैयारी करेंगे तो डू यू थिंक यू विल हैव एनफ कॉर्पस फॉर योर रिटायरमेंट? नो। हियर इज एन एग्जांपल, अमर अकबर एंथोनी का। सो they were friends and they started their retirement journey, or started investment, you can say, for retirement in different ages. So Amar started early, 5,000 rupees per month, and the rate of return is 12% only. Akbar, at the age of say 35, and Anthony at the age of 40. So Amar got the maximum tenure of 30 years, Akbar got 25 years, and Anthony got 20 years only. See the difference. Just by starting early, Amar got the return of 1.74 crores, whereas Akbar got 93 lakhs only, and Anthony got only 49 lakhs, friends. So basically, Amar started his financial journey for his retirement just after first paycheck only, and that's the reason he's getting 1.74 lakhs just by contributing 5,000 per month, whereas Akbar started after getting married, maybe 5 years after, and so he's getting 93 lakhs only, whereas Anthony is getting he started investing after first child, maybe at the age of 40 or so. So he's getting only 49 lakhs only. What we need to understand is the sooner you start make a difference, and the sooner you start, much more you are going to get in near future. There is something called cost of delay. We call it regret of hype also, because of which, see the difference. 1 lakh of investment at the age of 25 years means, and the investment period is 35 years, till your retirement. What is the return? 2.71 lakhs. If someone starts delay by 1 year, he will get 2.45 CR only. Delay by 2 years, 2.22 CR. Delay by 3 years, 2 CR only. Delay by 4 years, 1.81, and delay by 5 years, 1.64 CR only. So there, just by getting delayed for 5 years, how much there is a cost, or less you are going to get? More than 1 CR. 5 साल की देरी और 1 करोड़ का नुकसान। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग में कितनी देरी कर चुके हैं? अगर देरी कर चुके हैं तो कोई बात नहीं है, जब जगो तब सवेरा, ठीक है। अभी तक नहीं किया है, मैं बोलता हूं आज से स्टार्ट कीजिए। जितने टाइम बचे हैं उतने ही टाइम में you can achieve your goals. But then you need to take a help of good financial advisor, good financial consultant who can help you. अभी 5,000 से you will achieve your financial goal retirement के लिए, या फिर 10,000 करना पड़ेगा, 15,000 करना पड़ेगा. For that you need a proper planning, right? But then for that you will have to contact a good financial advisor. Here I want to talk something on risk. इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है और यहाँ पे लोग लॉजिक देने लगते हैं, स्पेशली जो ट्रेडिशनल लोग हैं जिनको एफडी, आरडी और पीपीएफ, और वापस से सेम प्रोडक्ट की मैं नाम ले रहा हूं, जिन्होंने उसका मजा लिया है, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि उसमें रिटर्न मिला, बट उनका अटैचमेंट उनके प्रति है, और साथ में उनका लॉजिक ये रहता है उसमें रिस्क नहीं है। आज के डेट में म्यूचुअल फंड, इक्विटी, रियल एस्टेट, है ना, गोल्ड एंड बॉन्ड्स, इन सभी चीजों की जब हम बात करते हैं तो वो लोग बोलते हैं वहां रिस्क है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रिस्क, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में एक बहुत ही शानदार सोनी लाइव में वो हर्षद मेहता को लेकर एक वेब सीरीज आया था। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन। इफ यू हैव सीन, दैट्स वंडरफुल। इफ नॉट, आई रिकमेंड एवरीबडी, प्लीज गो एंड वॉच। उसमें एक डायलॉग है,
इस रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। सो आई यस दैट्स ट्रू फ्रेंड्स। आप मॉर्निंग उठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? मिरर में अपने आप को देखते हैं, करेक्ट? मिरर में अपने आप को देखते हैं, इट मीन्स व्हाट? यू आर अलाइव, आप जिंदा हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप कल मरे नहीं रात में। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो रात में सोए सोए ही इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। आप जगे हैं, इसका मतलब क्या है? आप जिंदा हैं, और जिंदा हैं तो लाइफ में रिस्क है, बिकॉज लाइफ इटसेल्फ इज ए रिस्क, नो, फॉर लूजिंग द लाइफ। अगर लाइफ नहीं रहा तो फिर देयर इज नो रिस्क एट ऑल। चीज को समझिए। एंड देन कैसे कैसे रिस्क है? आप रोड में चल रहे हैं, आप सही तरीके से चल रहे हैं, सामने से कोई गलत तरीके से आया, आपको मार दिया, लाइफ का रिस्क। आप गाड़ी चला रहे हैं, या ट्रेन बस में सफर कर रहे हैं, या फ्लाइट में जा रहे हैं, कुछ हो गया तो वहां मरने बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। सो व्हाट इज दैट? प्योरली लाइफ रिस्क इज दैट। बट लेट मी आस्क यू, कितने लोग रोज मर रहे हैं और कितनी दुर्घटनाएं होती है? अगर रोज दुर्घटनाएं होती है, हर ट्रेन हर बस में दुर्घटनाएं होती, तो हम ट्रैवल करना ही छोड़ देते। नंबर 1। नंबर 2, आप एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, से ग्रोसरी शॉप ही खोल रहे, ठीक है? क्या आपको पहले से पता है कि कस्टमर उधर आएंगे ही? नहीं, बट आप वहां पे 5 लाख 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं, कस्टमर आए, देन आपका प्रोडक्ट अच्छा रहा, आपका बिहेवियर अच्छा रहा, धीरे धीरे लोगों को पता चला, बिजनेस चल निकला। बट नहीं हुआ तो नहीं चलेगा। बट वो रिस्क आप लेते हो, दैट इज व्हाट? दैट इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। आप एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हो, फॉर एग्जांपल, आपने एक ट्रक लिया, ट्रक सेफ कहां पर है? पार्किंग लॉट पे, ठीक है? बट अगर वो सेफ रहेगा, पार्किंग लॉट में खड़ा रहेगा, इज इट गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ रिटर्न? नेवर। आप ये रिटर्न कब देगा? जब रोड में जाएगा। लेकिन आप ये बोलते हो रोड में जाने नहीं देते हैं कि रोड में जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तो खर्चा हो जाएगा, एंड ऑल ब्ला ब्ला। तो कभी भी आपको रिटर्न मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसको रोड में जाने देना ही पड़ेगा। हो सकता है कभी एक्सीडेंट हो जाए, बट दैट इज फाइन। सो दैट इज व्हाट कॉल बिजनेस रिस्क। वो उतना रिस्क तो लेना पड़ता है, राइट? अब हम कुछ और बात करते हैं। सब अदर रिस्क, लाइफ के अदर रिस्क क्या है? मैरिज इटसेल्फ, डोंट यू थिंक इट्स अ बिगेस्ट रिस्क? हम एक ऐसे इंसान के साथ शादी करते हैं जिसको शायद हम जानते भी नहीं है कभी, स्पेशली अरेंज मैरिज के केस में। लव मैरिज में तो फिर भी थोड़ा जान लेते हैं एक दूसरे को, बट देन साथ रहना और लाइफ लॉन्ग साथ बिताना, इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज। बट वी टेक दैट रिस्क कि हमें साथ निभाना है। डोंट यू थिंक? अगर आपके दिमाग में ये चले कि अरे शादी होगा फिर डिवोर्स हो जाएगा, तो छोड़ो, शादी ही नहीं करते, तो फिर शादी कभी होगी नहीं। बट वो रिस्क लेते हैं कि नहीं, हम ये नहीं सोचते हैं कि शादी होगा तो शादी टूट जाएगा, हम ये सोचते हैं शादी को निभाएंगे और अच्छा होगा, एंड एक अच्छी जर्नी चलेगी। सो यहाँ ओवरऑल मतलब रिस्क का मतलब यहाँ पे समझने की जरूरत है। रिस्क इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी, एंड व्हेन वी से अनसर्टेनिटी, इट मीन्स चांसेस ऑफ गेन एज वेल एज लॉस। बट प्रॉब्लम क्या है, जब हम रिस्क वर्ड बोलते हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उसको लॉस के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। रिस्क मतलब लॉस होने का। अरे रिस्क ले रहे हैं तो वहां गेन होने का भी चांस है, चीज को समझिए। एंड देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिस्क, एंड रिस्क इज एवरीवेयर। आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जाम्पल आपने फिजिकल गोल्ड ले लिया, ज्वेलरी ले लिया, और कल ही आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। आपको मालूम है आपको 10 से 15% कम पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो मेकिंग चार्ज होता है ना, वो कट जाता है।
वो नहीं मिलता है। और अगर कैश आपको वापस चाहिए तो बहुत सारे ज्वेलर और 5-10% काट लेते हैं। सो एक्चुअल में 20 से 25% एक दिन में आपका नुकसान हो सकता है गोल्ड में अगर इन्वेस्ट किए, ज्वेलरी में अगर ले लिए तो। चलिए थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि आपने गोल्ड में, आप स्मार्ट हैं, आपने फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी नहीं लिया, आपने कॉइन ले लिया या फिर पेपर फॉर्म में इन्वेस्ट कर दिया गोल्ड में, बट देन गोल्ड का प्राइस नीचे आ गया और जब आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है तब क्या होगा, आपको आज के डेट में मार्केट प्राइस जो है उस रेट से मिलेगा। इट मीन्स व्हाट, गोल्ड जिसको कि बोला जाता है वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, वहां पर भी लॉस होने के चांसेस है एंड सच टाइप, वहां पर भी रिस्क है एंड सच टाइप ऑफ रिस्क इज कॉल्ड मार्केट रिस्क। गॉट इट। अभी एक और एग्जांपल मैं देता हूं, रियल एस्टेट। लोग बोलते हैं कि अरे बेस्ट है कि भाई फ्लैट खरीद लो, जमीन खरीद लो, ठीक है, उससे बेटर इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। आपने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया 50 लाख में, आज वो 2 करोड़ का हो गया, आपको 1 करोड़ चाहिए आज के डेट में, क्या आप उसका हाफ पोर्शन बेच के निकाल सकते हैं? क्या आप उसको पार्शियली आप विड्रॉ कर सकते हैं उस 2 करोड़ अमाउंट का? नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, 2 करोड़ आज के डेट में वैल्यू है, आप बेचना चाह रहे हैं, आपको कोई बायर नहीं मिल रहा, 2 करोड़ का प्रॉपर्टी है, आपको कैश की जरूरत है 1 करोड़, लेकिन 2 करोड़ आप चलो डिसाइड कर लिए कि 2 करोड़ में बेच देते हैं, 1 करोड़ अपना काम लेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है, लेकिन आपको बायर नहीं मिल रहा। व्हाट काइंड ऑफ रिस्क इट इज? दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क। आप लिक्विडेट नहीं कर पा रहे। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिस्क एंड one thing you need to understand that risk is everywhere and no risk no gain, risk hai to isk hai। So it's very much I mean we need to understand that first of all a ship is in a harbor is safe, but that's not what ships are built for, correct? अगर को हार्बर में खड़ा कर दें तो वो सेफ है, बट उसके लिए नहीं जाना जाता है, वो आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए जाना जाता है। सो व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क दैट यू हैव? द रिस्क ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क है, बट अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका पैसा ऐसे भी ग्रो नहीं करेगा एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डेट्रिएट ही हो रहा, उसका परचेजिंग पावर घट रहा, तो उस तरीके से ऐसे भी माइनस हो रहा। इन्वेस्ट करेंगे, सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, सो देयर आर चांसेस दैट देयर इज अ ग्रोथ। बट अगर नहीं इन्वेस्ट करेंगे ये सोच के कि रिस्क है, एक्चुअली दैट इज समथिंग लाइक आपने ट्रक लिया है और ट्रक को पार्किंग लॉट में खड़ा कर दिया है, सो दैट विल गिव यू मोर लॉस। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, करेक्ट? सो व्हाट आर द सॉल्यूशन फ्रेंड्स? We understood that we need to create the wealth. And why? Because to beat the inflation, to achieve our financial short-term, mid-term and long-term goals, to achieve timely our financial goals, we need to create the wealth. Short-term goals means 1 to 3 years, 3 to 10 years medium-term goals, and over 10 years of goals are long-term goals. To achieve these goals, the solutions are equity, mutual funds, PMS, gold, real estate and bonds. ये आज के डेट के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? Because these are the products have the capacity to give you more returns than your inflation. Inflation 7-8% पकड़िए या लाइफ स्टाइल 10% पकड़िए, इन सबसे ज्यादा रिटर्न देने के इसमें प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं। नाउ हाउ टू डू, हाउ टू गो विथ। अभी 1.5 घंटे का प्रोग्राम में सारा चीज डिटेल में नहीं जा सकते, बट एक एक लाइन में मैं समझाने की कोशिश करता हूं।
So if you have time, if you have expertise, experience, go for equity. By investing in right stocks, you can create massive wealth for yourself. Mutual fund. You don't have time, don't have expertise, but you have money, small or big. Go with mutual fund. The fund manager is expert, experience. He can manage your fund well, and end of the day, you can earn money for yourself. Again, there are different types of funds: debt fund, hybrid fund, equity funds. So for short term, there are different funds are there. For medium term, different funds are there. For long term, different funds are there. Right? I'm not going into details, but then these are the things. PMS. If you are HNI or ultra HNI client, आपके पास बहुत पैसा है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपया है, then PMS is the product, or one more product called AIF. So basically, it starts with 50 lakhs rupees. It works very much like mutual fund, but then there is a difference. Mutual fund में diversification ज्यादा रहता है, more than 50-60 stocks रहते हैं. PMS में के केस में it's maximum 20 stocks. And again, the portfolio manager is highly expert, experienced. Gold, you all know, आज ऑन डेट ये पेपर फॉर्म में, ETF फॉर्म में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के रूप में अवेलेबल है. यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट थ्रू एक्सचेंज. जहां आप मार्केट ज्वेलर से जाते हैं, वहां पे उसका क्वालिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, फिर उसको रखने का प्रॉब्लम, सेफ्टी का इशू हो सकता है. बट गोल्ड इज ऑलवेज अ गोल्ड, एंड वी हैव सीन इन लास्ट 30-40 ईयर्स, एवरी 4 ईयर 5 ईयर्स में एक साइकिल चलता है, देन उसके बाद वो रुका हुआ रहता है, फिर वो एक जंप लेता है. ठीक है. सो गोल्ड में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. रियल एस्टेट, खोजबीन करने के बाद सही तरीके से अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट होके, जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको समझ के, रियल एस्टेट में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज के डेट में रियल एस्टेट भी पेपर फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शंस देती है. ठीक है. सो उसके लिए आप किसी एक्सपर्ट को पकड़ के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड बॉन्ड्स गिव यू लेस रिटर्न, बट अगेन इट मैच द इन्फ्लेशन. करेक्ट. नाउ अभी इतने 4-5 प्रोडक्ट दे दिए, किस में करना चाहिए? द सॉल्यूशन इज एसेट एलोकेशन, एंड आई रिकमेंड गो विथ proper diversification of your portfolio, and by doing so you will achieve your all financial goal timely. अगर शॉर्ट टर्म गोल से 1 से 3 साल के अंदर के हैं तो नेवर, आई डोंट रिकमेंड गो विथ इक्विटी और म्यूचुअल फंड, आई मीन इक्विटी म्यूचुअल फंड. देन इट इज रिकमेंडेड गो विथ बॉन्ड्स, जहां पे मार्केट माइनस भी आएगा, आपका पैसा माइनस नहीं आएगा. 3 से 5 साल, 3 से 10 साल की अगर आपके कोई फाइनेंशियल गोल्स हैं, तो अगेन आई वोंट रिकमेंड फॉर 100% इक्विटी. देन मिक्स ऑफ मे बी बॉन्ड्स, गोल्ड्स and equity. So that is called hybrid funds. And any goal which is coming after 10 years, your long-term goals, then one should go with equity funds. This is the basic concept of wealth creation. So it's very much similar like, आपको मार्केट जाना है तो आप क्या, कौन सा व्हीकल यूज करेंगे? मे बी स्कूटी या फिर ऑटो लेंगे. अगर आपको दूसरे सिटी जाना है तो आप ट्रेन या बस लेंगे. दूसरे कंट्री जाना है तो आप क्या करेंगे? फ्लाइट लेंगे. लेकिन लोग उल्टा कर लेते हैं, मार्केट जाने के लिए फ्लाइट पकड़ने की कोशिश करते हैं. इन्वेस्टमेंट के केस में 1 साल 2 साल में उनको पैसे की जरूरत है, अरे शॉर्ट टर्म पैसा बना लेते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा लेते हैं, मार्केट गिरता है, उनका पैसा डाउन हो जाता है, बाद में रोते हैं एंड बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इज बैड, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, एंड ऑल दोज डायलॉग्स. 3 साल के अंदर पैसा चाहिए, आप रिस्की प्रोडक्ट में मत डालिए, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं है, वहां पैसा माइनस हो सकता है. इवन 10 साल के अंदर भी पैसा चाहिए तो प्योर इक्विटी में मत डालिए, हाइब्रिड मिक्स करके डालिए. 10 साल के बाद है तो डेफिनेटली यू कैन टेक रिस्क. एंड अभी तक का जो हिस्ट्री देखा गया है, 7 साल के बाद, 7 साल तक भी मार्केट डल रहा है, उसके वजह से इक्विटी ने माइनस रिटर्न दिया है. बट 7 साल तक बने अगर रहते हैं तो उसके बाद 7 years का साइकिल में जो देखते हैं तो इट हैज गिवन ऑलवेज पॉजिटिव रिटर्न्स. राइट. सो एज ऑफ नाउ इक्विटी से रिलेटेड, वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड
I hope we all are in same page. अगर कोई queries है तो please note it down. I'll take and I'll love to answer that queries at end of the session. Otherwise, understanding level पे I hope we all are in same page. If you all are in same page, please type in the chat box SP. Fantastic, fantastic, fantastic. Wealth protection. Thus, as I said, financial planning is all about wealth creation and protection. Wealth creation जरूरी है, but protection is also equally important, friends. Let's understand this, how it is. So as per a standard of living, our society is divided into 5 parts. If we consider it through a pyramid, so it's like the topmost people are luxury. The people who are leading a luxurious life, the 5 or 10% people, you can say, Tatas, Birlas, Ambanis and all. For them, money does not matter a lot at all, you can say. They have all the luxury in their life, and by money, whatever is available in the market, they are availing it, you can say. Money is not a matter for them. For the top 5% or 10% people, comfort. The people, you can say, they are also leading a luxurious life, but then when it comes to money, they give a second thought. They look for options. For example, maybe there are chances that luxurious kids and comfort level kids, they are studying in the same school. But then in holidays, the luxurious kids are going for European tours or something like that. And the comfort level kids, their parents making them understand कि बेटा अपने इंडिया में भी ना बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं, चलो इंडिया इधर ही कहीं घूमने चलते हैं, kind of thing. The luxurious kid or a son asking for a to attend a conference at US. So his parents are saying, okay बेटा जाओ, कितना खर्चा लगेगा, किधर रहने का है, kind of thing. But in comfort level, money matters. They look for option. Okay. So इनका बेटा जब अपने पेरेंट्स से बोल रहा है, तो उनका पेरेंट उनको समझा रहे हैं कि बेटा मैंने देखा है सेम टाइप का कॉन्फ्रेंस जो है ना इधर सिंगापुर में भी हो रहा है, तुम सिंगापुर में क्यों नहीं अटेंड कर लेते? Can you relate it? So that is the difference between luxury. So who are the comfort level people? Maybe the CEOs of a company, MDs of a company. ठीक है, पैसा इनके पास भी है, but not as luxurious people. They are not the owner, you can say. पैसे की जब बात आती है तो एक बार वो लोग ऑप्शन ढूंढते हैं. Getting by. Again, these are the people who have enough of money. They are leading a life of combination of luxury and comfort, where luxury is 30%, 70% comfort. And पैसे जो की जब अगर बात करें तो पैसा इनके लिए कुछ ज्यादा ही मैटर करता है. But then इनके पास भी घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, और एंड ऑफ द डे अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसा बचा लेते हैं. So they are called getting by. Bare necessity. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, these are the people. So middle class, lower middle class people, you can say. इनके केस में क्या है, जितनी कमाई है उतनी ही खर्चे भी हैं, एंड समटाइम्स कुछ इमरजेंसी आ जाने पे इन्हें लोन भी लेना पड़ जाता है. So they are the people called bare necessity people. And the charity, the people, the lowest तबके के लोग जो हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन बोल सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनकी कमाई का कोई ठिकाना नहीं है, लाइफ चल रही है. So they are basically on charity. So as per a standard of living, हम सभी इन्हीं पांचों में से कोई एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं.
ओके, नाउ लेट मी टेल यू, आप जिस किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अपने आप को देख लीजिए, आप लग्जरी में है, कंफर्ट में है, गेटिंग बाय में है, बेयर नेसेसिटी में, किसी में भी है, इस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए आपका बहुत ज्यादा हार्ड एंड एफर्ट है, एंड इसके बाद इस लेवल को आप पहुंचे हैं या फिर मैनेज कर रहे हैं। बट देन लेट मी टेल यू, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को गिराने के लिए आपके पीछे 5-5 दुश्मन लगे हुए हैं, और वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को गिराने के लिए। जानना चाहोगे वो 5 दुश्मन कौन है? मोनिका मैम इज सेइंग यस। ओके, ग्रेट। सो फ्रेंड्स, ये 5 दुश्मन जो हैं वो ये हैं, द फर्स्ट इज डी फॉर डेथ, सेकंड इज डी फॉर डिसेबिलिटी, थर्ड डी फॉर डिजीज, एंड फोर्थ इज इन्फ्लेशन, एंड फिफ्थ इज टैक्स। इसको हम लोग ट्रिपल DIT भी बोलते हैं। आप देखिए, आपके घर में जो ब्रेड अर्नर हैं, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिया में तो देखा गया है कि एक ही ब्रेड अर्नर होता है, वही कमा रहे हैं, कहीं कहीं 2 भी हैं। चलिए, 1 हो या 2 हो, हर किसी में, हर कोई भी एग्जांपल आप ले लो, ठीक है, ब्रेड अर्नर के साथ कुछ हो गया, मिसहैपनिंग हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट और किसी भी रीजन से, ब्रेड अर्नर इज नो मोर। क्या लगता है उसका इंपैक्ट कहां होगा? द फर्स्ट इंपैक्ट विल बी ऑन इनकम। जो बचा खुचा पैसा रहेगा उसी से लाइफ चलेगी, एंड थोड़े टाइम के बाद अब इनकम ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरेगी। आई हैव सीन पीपल जो कल तक एकदम एक अलग ही लाइफ स्टाइल जी रहे थे, ब्रेड अर्नर के साथ हुआ, उन्होंने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रखी थी, और उसके बाद वो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में चले गए, हिंदी मीडियम में थे तो वो गवर्नमेंट स्कूल में चले गए, काइंड ऑफ थिंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कहाँ हम देखते हैं? घर, गाड़ी, है ना, बच्चे कहाँ पढ़ रहा है, यही सबसे तो देखते हैं। सो ये होते हुए मैंने देखा है। सेकंड, चलिए डेथ नहीं होती है, इनफैक्ट किसी भी इंसान के मरने के चांसेस कम होती है इन कंपैरिजन टू हॉस्पिटलाइजेशन और डिसेबिलिटी, डिजीज बोलिए, ठीक है। ब्रेड अर्नर के साथ एक्सीडेंट हो जाती है, डेथ नहीं हुई बट डिसेबल हो गया, ये तो स्थिति और भी उससे भी खराब हो जाती है। डिसेबल इन द सेंस किसी भी रीजन से बेड रिडन हो गए, इम्पैक्ट अगेन इनकम पे, और उसका इम्पैक्ट कहां पे पड़ेगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। थर्ड, आज के डेट में जो लाइफस्टाइल है हमारा, कभी भी किसी को भी कुछ भी डिजीज हो सकता है, और अगेन ऐसा हुआ अगर की पर्सन के साथ बेड रिडन हुए, इम्पैक्ट कहां पे? इनकम पे, और अल्टीमेट इनकम इम्पैक्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। सो ये 3D जो है बहुत डेंजर है, इनसे ये एकदम लगे, कभी भी किसी के साथ हो सकता है, करेक्ट, एंड हुआ तो सीधा सीधी इम्पैक्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। एंड नेक्स्ट है इन्फ्लेशन एंड टैक्स। इन्फ्लेशन बताने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया किस तरीके से इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है हमारे लाइफ पे। सो इन्फ्लेशन का नेचर है बढ़ते रहना, और उसको ध्यान में रखते हुए अगर हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है, इन्फ्लेशन 6% 7% है, और साल में आपकी सैलरी या इनकम 3% 4% से बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, तो एक्चुअली हम घट रहे हैं। तो बिलीव मी, इनकम के टर्म में या तो हम बढ़ रहे होते हैं या फिर हम घट रहे होते हैं या मर रहे होते हैं, जो बोलना है बोलिए, ठीक है, ये सत्य है, ये सच्चाई है। सो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट की वजह से एक्चुअली हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग, अगर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रॉपर प्रोटेक्शन आपने नहीं कर रखा है, प्रॉपर तरीके से आपका वेल्थ क्रिएट नहीं हो रहा है, सो एक्चुअल में आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंपैक्ट करेगा। एंड लास्टली टैक्स। आज के डेट में एवरी ईयर, अभी बजट फिर आने वाला है, कुछ ना कुछ ऐसा गवर्नमेंट नया चीज लेके आ जाता है और उसका इंपैक्ट आम जनता पे पड़ता ही है।
सो प्रॉपर टैक्स प्लानिंग भी बहुत जरूरी होती है। टैक्स प्लानिंग एक ऐसा पार्ट है जो मैक्सिमम इंडियन इसके बारे में सोचते नहीं है, इसके बारे में प्लान नहीं करते हैं, एंड फिजूल का गवर्नमेंट को कई बार टैक्स देते हैं। जहां पे प्लान करके आप बचा सकते हैं अपना इनकम को, क्यों नहीं आप बचाते हैं, नंबर 1। दूसरा, जहां देना है वहां तो देना है, उस पर कोई उपाय नहीं है, ठीक है, बट जितना बचा सकते हैं उसको तो बचाना ही चाहिए। और कितने एफिशिएंटली आप टैक्स प्लान करके अगर करते हैं उतना आपके लिए अच्छा होता है। अगर नहीं कर पाते हैं तो इससे लर्न करने की जरूरत है, आपको एक एक्सपर्ट की हेल्प लेने की जरूरत है। सो आई होप आप समझ गए कि वेल्थ को प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है, और वेल्थ अनप्रोटेक्टेड हो सकता है। सो बेसिकली किन किन रीजन से हो सकता है ये आपको समझ में आ गया है। सो हियर आई वांट टू से समथिंग, इनकम एंड एसेट्स एक्वायर्ड बाय यू बाय योर हार्ड वर्क। आय और संपत्ति आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम है। Most of us have only one source of income, one inheritance. We need to ensure that what flows into our hand does not flow out so easily. हमने देखा है एक घर में जब डेथ हो जाती है और उसके बाद फिर फैमिली, स्पेशली हाउसवाइफ रहती हैं, वाइफ या जो भी घर में बच जाते हैं, उनको नहीं पता होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे किया जाए, घर कैसे चलाया जाए, तो बहुत दिक्कतें आ जाती है। सेम थिंग, घर में जब कोई डिजीज आ जाती है तो मैंने देखा है, वी लव्ड आवर लव्ड वन, करेक्ट, चाहे घर में बच्चा हो या बड़े हो, कोई भी, हम ऐसे ही उनको नहीं छोड़ देते हैं, तो घर द्वार सब बेच देते हैं उसको बचाने के चक्कर में, और लास्ट में क्या होता है, वो बच भी नहीं पाता और पैसा भी चले जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इन सब चीजों का प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो, इन सब चीजों से बचने का, तो हमारा हार्ड एंड मनी कभी भी निकल के जा सकता है। तो सॉल्यूशन क्या है फ्रेंड्स, उससे पहले एक एग्जांपल देना चाहूंगा। युवराज सिंह, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, ये तीनों वेल नोन फेस हैं, करेक्ट, आप सभी इनको जानते हैं। युवराज सिंह 6 छक्का जिताने मारने के लिए और 2 वर्ल्ड कप जिताने में मतलब अहम भूमिका निभाया था, इस चीज के लिए जाने जाते हैं। अमिताभ बच्चन स्टार ऑफ द मिलेनियम, एंड ऋषि कपूर अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार बोल सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के थे। इनके साथ क्या हुआ था, इस चीज के लिए भी पॉपुलर हुए थे। तो युवराज सिंह को कैंसर हुआ था, अमिताभ बच्चन को डेंगू हुआ था, और हाल में कोरोना भी हुआ था, और ऋषि कपूर को डेंगू भी हुआ था, बाद में कैंसर हुआ और आज वो नहीं रहे। बट देन ये बड़े नाम हैं, बड़े लोग हैं, ठीक है। एक बात बताइए, इनका लाइफ स्टाइल बेटर है या हमारा आपका लाइफ स्टाइल बेटर है? चाहे खान पान की बात हो, चाहे अपने आप को फिट रखने की बात हो, हर एक मामले में आप एग्री करेंगे इस बात को कि इनका लाइफ स्टाइल हमसे कई गुना बेटर है। इन स्पाइट ऑफ दैट ये बीमार हो सकते हैं, इनकी डेथ हो सकती है। तो हमारे साथ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये सच्चाई है, मैं डरा नहीं रहा, ये लाइफ की सच्चाई है, हमें इसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है। तो सॉल्यूशन क्या है फ्रेंड्स? सॉल्यूशन है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये आपके वेल्थ को प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकता है। एज ए ब्रेड अर्नर आप अपने फैमिली के लिए सब कुछ अच्छा से प्लान करके चल रहे हैं, और आप रहेंगे तो सब कुछ कर भी लेंगे, बट बात वही हो जाती है, मैं हूं तो सब कुछ है। कल को अगर मैं नहीं हूं तो मेरे नहीं रहने से जो फिनेंशियल कमी पूरी होगी, जो फिनेंशियल कमी है वो पूरी हो सकती है। कल को मेरे नहीं रहने से मेरी कमी पूरी नहीं हो सकती है, बट मेरे नहीं रहने से जो फिनेंशियल कमी है वो पूरी हो सकती है, अगर आपने एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो। अभी एडिक्वेट या पर्याप्त जिसको हम लोग बोलते हैं का मतलब क्या हुआ, इसको सीधे शब्दों में समझते हैं, आपकी सालाना इनकम जितनी है उसका 20, अभी फॉर्मूला समझाने का टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं बहुत डिटेल में इसमें सेशन लेता हूं। सिंपली आप देख लीजिए, आपका सालाना इनकम जितना है उसका 20 गुना आपने इंश्योरेंस कवरेज ले रखा है या नहीं है। आप ट्रेडिशनल प्लान लिए हैं, टर्म इंश्योरेंस लिए हैं,
जो भी लिए हैं मतलब नहीं है, कितना लिए हैं देख लीजिए। अगर 10 लाख है, 20 गुना मतलब 2 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए। अभी आपने 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख का ले रखा है, तो बहुत बड़ा गैप है। सीधा सा आंसर है क्यों? सो वही जो मैंने अभी बोला, मैं नहीं रहूंगा, मेरी कमी तो कभी पूरी नहीं होगी, बट मेरे नहीं रहने से फिनेंशियल कमी, क्योंकि मैं रहूंगा तो फिर इतने सालों तक कमाते रहूंगा ना, तो वो 2 करोड़ से ज्यादा ही होगा, बट देन फिलहाल के लिए 2 करोड़ काफी होगा। फिर उसके बाद बच्चे बड़े भी हो जाएंगे, वाइफ भी कुछ कर लेगी, वाली बात हो जाती है। ठीक है, सो 2 करोड़ रुपया अगर इंस्टेंट आपके लव्ड वन को, आपके नॉमिनी को, आपके घर वालों को मिल जाएगा, 2 करोड़ रुपया एफडी भी रख देंगे, तो 6% के हिसाब से कितना होता है साल का? 1 करोड़ का 6%, 6 लाख, 2 करोड़ का 12 लाख, 12 लाख मतलब 10 लाख से ज्यादा ही हुआ। ठीक है, सो इसके लिए 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम, दैट इज कॉल्ड एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस। रिकमेंड करने की अगर मैं बात करूं, किसी भी अच्छी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, टॉप 5 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी गूगल में सर्च कीजिए, कोई भी एक इंश्योरेंस कंपनी का टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। आपका एज 25 साल हो, 35 साल हो, 45 साल हो, 50 साल हो, कुछ भी हो, नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। एंड देयर विल बी अ मेंटल पीस। ठीक है, आदमी सोचते रहता है, कहीं ना कहीं जब कुछ लाइफ में गड़बड़ होती है तो पहला चीज आता है, ओ माय गॉड, मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा। अगर ये कर लिए तो वो एक मेंटल पीस रहेगा, मेरे बाद किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, दे देमसेल्फ विल बी टेक केयर। ये जो इंश्योरेंस है, ये इट विल टेक केयर एटलीस्ट फिनेंशियली। क्लियर? नेक्स्ट, एक इंसान के मरने के चांसेस कम होते हैं इन कंपैरिजन टू हॉस्पिटलाइज या एक्सीडेंट के। तो चाहे हॉस्पिटलाइजेशन एक्सीडेंट की वजह से हो या हेल्थ रीजन के वजह से हो, आज के डेट में हॉस्पिटलाइज मतलब 50,000 लाख रुपया का खर्चा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में तो यूं हो जाता है, और उसमें अगर अच्छे हॉस्पिटल में गए हैं तो फिर तो आप सोच भी नहीं सकते, 5-10 लाख यूं निकल जाते हैं। तो अगेन हेल्थ इंश्योरेंस भी उतना ही जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस, एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस, पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं, तो आपका सालाना इनकम जितना है उसके बराबर या उसका दुगना अगर आपने ले रखा है तो इट्स ए गुड सम। अभी उससे ज्यादा भी ले सकते हैं तो और अच्छी बात है, बट 1 to 2 टाइम्स इट्स ए गुड सम। सो 10 लाख सालाना इनकम है तो मिनिमम 10 लाख का मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस या फिर 20 लाख का अगर आपने ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे चीजों में कभी भी किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया, कुछ हो गया, द इंश्योरेंस कंपनी विल टेक केयर, और आपका हार्ड एंड मनी जो आपने क्रिएट करके चल रहे हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, उसको फिर टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड लास्टली फ्रेंड, सो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, इट विल टेक केयर ऑफ योर 3D, डेथ, डिजेबिलिटी, डिजीज पार्ट, एंड IT जो मैंने बताया, इन्फ्लेशन एंड टैक्स। इन्फ्लेशन और टैक्स के लिए, इससे बचने के लिए म्यूचुअल फंड में स्कीम्स है, दैट इज कॉल्ड ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, या फिर इंश्योरेंस में भी यूलिप प्लान्स होते हैं। आज के डेट में यूलिप प्लान्स भी सस्ते हो गए हैं, कम चार्ज लगते हैं, बट देन ELSS में इंश्योरेंस का कंपनी में कम चार्ज लगते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा ELSS ही लो या इंश्योरेंस लो, बट देन टैक्स सेविंग के लिए ट्रेडिशनल प्लान में इंश्योरेंस लेना वो कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं है। इट्स बेटर यू गो विथ ELSS. ELSS गॉट द कैपेसिटी फॉर टैक्स रिबेट as well as to beat the inflation. ठीक है, सो टैक्स और इन्फ्लेशन ये दो जो एरिया हैं जो कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहे हैं हमारे लाइफ में, उनको बीट करने के लिए ELSS इज द स्कीम जिसके थ्रू से आप वेल्थ को अपना प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो अगेन हियर आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू, आर वी ऑन सेम पेज? वेल्थ क्रिएशन क्लियर हो गया, वेल्थ प्रोटेक्शन क्लियर हो गया।
If it is clear, please type in the chat box clear. Fantastic, fantastic. Thank you. Let's move. Lastly, friends, wealth transfer. Wealth transfer, यहाँ पे मैं समझता हूँ मैक्सिमम मैच्योर्ड लोग हैं, ठीक है, कोई स्टूडेंट तो नहीं है शायद, सो दे कैन इजीली अंडरस्टैंड। पिछले कुछ सालों में 17-18 के टाइम पे ये पिक्चर जो है मीडिया में, सोशल मीडिया में काफी फ्लोट हुआ था। सो ही इज मिस्टर विजय पत सिंघानिया, रेमंड कंपनी, 10,000 करोड़ की कंपनी के इकलौते मालिक। इनको इनके बेटे ने घर से निकाल दिया था। सो हुआ क्या था, इनका बेटा फॉरेन से पढ़ के आया और इन्होंने मतलब रैग्स टू रिचेज की स्टोरी तय की थी, एक तरीके से छोटे से बहुत लंबा सफर तय किया था। अभी सोचा मेरी एज हो गई है, बेटे के हाथ में सब कुछ दे दें और उसके बाद आराम करें, थोड़ा लाइफ में एंजॉय करें लाइफ को। बट बेटे ने जैसे ही सब कुछ अपने हाथ पे आया, देखा, बाप को बेदखल कर दिया, इवन घर से निकाल दिया। एंड आज के डेट में भी ही इज स्टिल अलाइव और अपने किसी दोस्त के रहमो करम पर किसी वृद्धाश्रम पे रहते हैं मुंबई पे। उनका कहना है, love your children and care for them, but don't love them so much that you are blinded. अपने बच्चों को प्यार करो, पर इतना मत करो कि उनके प्यार में आप अंधे हो जाओ, ठीक है। एक बहुत अच्छा कहावत है, पूत अगर सपूत हो तो धन संचय काहे का, और पूत अगर कपूत हो तो धन संचय काहे का। अगर पूत अच्छा, मतलब आपका बेटा अगर अच्छा बेटा निकला तो उसके लिए धन संचय करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, वो खुद कर लेगा। उसको इस लायक बना दीजिए कि वो अपना लाइफ जी ले, दैट्स इट। एंड वो आपका केयर भी करेगा, उसको आपके पैसों की जरूरत नहीं है आपका केयर करने के लिए, अगर बेटा अच्छा बेटा हुए तो। एंड वही बेटा अगर कपूत निकल गया, खराब बेटा निकल गया, तो उसके लिए कितना भी आप धन एकत्रित करके रख देंगे, वो सब बर्बाद करके रख देगा। हिस्ट्री में देखा गया है, मतलब राजा महाराजा के टाइम से करोड़ों अरबों रुपया का संपत्ति गलत हाथों में जाने की वजह से थर्ड जनरेशन तक भी नहीं पहुंचा है। मतलब सेकंड जनरेशन ही एनफ है आपके लाखों करोड़ों रुपया को बर्बाद करने के लिए, अगर वो गलत हाथों में जाता है। तो हियर इज ए क्वेश्चन फॉर यू, ऑल ऑफ यू। आपका हार्ड एंड मनी, आपने कितना कमाया नहीं कमाया, वट एवर इट इज योर हार्ड एंड मनी। आप जब जिंदा हैं तो आप चाहेंगे ना कि वो आपके कंट्रोल में हो, बट क्या आप चाहेंगे कि कल जब आप नहीं रहें तब भी वो आपके कंट्रोल में रहे और उसका कोई मिसयूज नहीं हो? प्लीज रिप्लाई यस और नो। आई एम श्योर यस, करेक्ट। So here is the solution for wealth transfer, that is estate planning. Don't confuse estate planning with real estate investment. Estate planning means wasiyat, will, trust banana and all. Okay. So here I invite all of you for a small activity. Please close your eyes, everybody. अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन कर लीजिए। या आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, प्लीज क्लोज योर आईज। वीडियो ऑन कर सकते हैं तो ऑन कीजिए एंड अपने आंखों को बंद करें। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। इनहेल डीपली, एक्सेल स्लोली। इनहेल डीपली, exhale slowly. For the last time, inhale deeply, exhale slowly. आपके स्पाइन स्ट्रेट होने चाहिए, शोल्डर अप, चिन अप, नेक स्ट्रेट। एंड नाउ जस्ट विजुअलाइज, आप अपने घर पे अपने स्पाउस, अपने बच्चों एंड पूरी फैमिली के साथ काफी खुश हैं।
इट्स वेरी मतलब कुछ फंक्शन हो रहा है, कुछ जो भी है, it's a wonderful moment you are sharing with your family members. Time बीत गए. Now just see this is the time when you are no more. आप अब इस दुनिया में नहीं. And just visualize what is the scene there at your home. क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. Now visualize कि आपके इस दुनिया से गए हुए अभी 3 महीने बीत गए. अब देखिए आपके घर का सीन क्या है, कैसा लग रहा है. It's tough to visualize, but try. Visualize now. The day has come. अब आपके स्पाउस भी नहीं रहे. If you are a lady, आप देखिए आपके स्पाउस भी नहीं रहे. एंड अब देखिए घर में क्या सीन चल रहा है. एंड नाउ विजुअलाइज कि आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी है, आपके स्पाउस के गए हुए भी 3 महीने बीत गए हैं. एंड अब आपके घर में घर का सीन क्या है. Come back to the present. Shake your body a little. Rub your both the hands. Put it in your eyes. You can open your eyes. मैं चाहूंगा कि आपने से 1-2 जन अगर कोई शेयर करना चाहेगा जो देख पाया क्लियरली पिक्चर को, तो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम one or two people. Yeah, sir, I would love to share. Yes. So I saw very clearly that all my luxury and the luxurious life is just because of my husband, and I am still not prepared to match these standards. और मेरे को बहुत डर लगा, बहुत ज्यादा डर लगा. और मेरे बच्चे तो बिल्कुल जैसे कबूतर के बच्चे हैं, उनको हमने इतने लग्जरी में रखा हुआ है. बराबर. Yes. Anybody else friend? और कोई शेयर करना चाहेंगे? Well, और 10-15 मिनट है हमारे पास, राइट. हम लोग we are almost at the end of the session. Meantime, there is a request. चैट बॉक्स में आप लोगों को एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा, बिकॉज सेशन एंड होने के बाद सबको जाने की जल्दी हो जाती है. तो हम चाहेंगे कि आज का सेशन कैसे रहा आप लोगों के लिए, उसके बारे में फीडबैक दे दें. So ma'am, please share the feedback form. Sir, actually I want to share one thing more because I am a parenting coach. Yes. So ये सबके लिए है because I am in this group. कि फीडबैक के लिए सर 2 मिनट दीजिए और अभी सब फीडबैक कर देंगे, क्योंकि मैंने देखा है ये मतलब आई गई हो जाती है बात. और फीडबैक भी मतलब नॉट मेकिंग एनीवन रॉन्ग, लेकिन लोग मतलब मैं तो डेवलप कर रही हूँ, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. जी. तो आप हमें मौका दीजिए कि 2 मिनट हम सब रुकेंगे और हम फीडबैक दे देंगे. चलिए, फीडबैक फॉर्म शेयर कर दिया गया है. आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी प्लीज टेक 2 मिनट. इट्स 1:19, सो 2 मिनट का समय दे रहे हैं. आप लोग प्लीज फीडबैक फॉर्म फिल कर दीजिए. Thank you, sir. Yes, Sunil ji, I can provide you the format for bill, not an issue. But then my suggestion will be better, instead of doing by your own, better do through a right person, right consultant. IK, thank you sir, it was amazing session, thank you. But यहाँ पे आप चैटिंग बॉक्स में रिप्लाई ना करें, वो जो फॉर्मेट दिया गया है वहां पे आप रिस्पॉन्ड करें
फीडबैक जो है वहां पे दें, ठीक है। तो सुनील जी मैं बताना चाहूंगा, एंड एवरीबॉडी आप लोग फीडबैक फॉर्म भरते रहिए बट साथ ही सुनते रहें। हाँ सर। एक बार क्या हुआ, एक कपल जो है उनके 2 बच्चे थे, वो लोग मलेशियन एयरलाइंस में ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। और उन्होंने विल जो बना रखा था कि उनके हिसाब से उनकी जितनी भी संपत्ति थी वो 2 भाग में, 2 बराबर हिस्सों में बटेगा, बड़े बेटे और छोटे बेटे में। और उन बंटवारे के बाद उनका एक अकाउंट रह जाता है, उस अकाउंट पे कुछ 8-10 हजार रुपया बचे हुए थे। उनका एक जो है ना बहुत ही मतलब वफादार नौकर था, तो उन्होंने विल में लिख दिया ये 50-50 बंटवारे के बाद जो भी बचता है, तो उनके हिसाब से जो अकाउंट जो बच रहा है उस अकाउंट पे 8-10 हजार जो थे वो उनके नौकर को होना चाहिए, ऐसा उन्होंने विल में लिख दिया। एंड उनके साथ क्या हुआ, वो लोग मलेशियन एयरलाइंस में ट्रैवल कर रहे थे और वो एयरलाइंस जो क्रैश कर जाती है उसमें उनकी डेथ हो जाती है। एंड उनका जो इंश्योरेंस का पैसा उसी अकाउंट में क्रेडिट होने का था, कुछ 10 करोड़ और सो, जिस और वो अकाउंट के बारे में जो है जो मेंशन किया गया था वो उनके नौकर को जाने का था। सो ये 10 करोड़ का इंश्योरेंस अब कायदे से एज पर द विल इसका हकदार जो है उसका नौकर हो रहा था। तो आप समझ रहे हैं मैं मैसेज क्या देना चाह रहा हूं। और ये 10 करोड़ रुपया मतलब उनके दोनों बेटा को जो बंटवारा होने के बाद जो टोटल अमाउंट होता है उससे भी कहीं ज्यादा हो रहा था, ठीक है। सो विल आप अपने खुद भी बना सकते हैं, अपने खुद हैंडराइटिंग से कर सकते हैं, लेकिन ये जो टेक्निकल टर्म्स कहीं ना कहीं हम लोग नहीं समझते हैं। सो थोड़ा सा 500,000 रुपया खर्चा हो जाए भले, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा अगर आप बनाते हैं तो उससे वो एक बेटर स्टेप होगा, सो दैट कल को आपके साथ ऐसी कोई दुविधा ना हो जाए। सर आप कहाँ बेस्ड हैं? मैं मुंबई बेस्ड हूँ, अंधेरी ईस्ट में मैं रहता हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। मैं भी बॉम्बे में ही हूँ, ठाणे में। जी जी ओके। सो 1:23 हो गया फ्रेंड। सो फ्रेंड्स मैं लास्ट में अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा, इन केस बाद में भी आपको 1-to-1 मुझसे बात करने की जरूरत पड़े तो आई विल ऑलवेज देयर। एंड एनी हाउ गेट सेट गो के साथ मेरा एसोसिएशन है तो हम ऐसे भी हम लोग टच में रहेंगे, डोंट वरी। ओके, तो सेशन को हम लोग एंड करते हैं। एट लास्ट जैसे कि मैंने बताया आई एम एन ऑथर ऑल्सो, एंड लॉकडाउन में मैंने 2 बुक लिखे, दोनों ही माइथोलॉजी पर बेस्ड थे, फिनेंशियल लेसन्स थ्रू माइथोलॉजी एंड लीडरशिप लेसन थ्रू माइथोलॉजी। तो उसका ही एक चैप्टर है। सो इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल प्लानिंग ये जो लेसन हम लॉर्ड विष्णु से ले सकते हैं कुछ इस तरीके से है। इनके 2 वाहन हैं, शेषनाग और गरुड़, और इनके 4 हाथ में है। 4 हाथ में शंख है, चक्र है, पुष्प है और गदा है। बगल में हनुमान जी हैं, नारद जी हैं, और उनके नेवल से हैं ब्रह्मा जी निकले हैं, और उनके चरणों में कौन है? गॉडेस लक्ष्मी, ठीक है। सो इनको थोड़ा मैं इलाबोरेट करूंगा आपके लिए, और इनसे लेसन लेके आप अपना प्रॉपर फिनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली उनके 2 वाहन शेषनाग और गरुड़ की अगर हम बात करें, शेषनाग से क्या है? स्नेक है, और उसकी विशेषता क्या है? वो शॉर्ट, उसका जो दृष्टि जो है वो निकट दृष्टि ही होती है, वो दूर का नहीं देख सकते। एंड गरुड़ जो है उसकी दृष्टि दूर की होती है, स्ट्रॉन्ग। सो जब आप फिनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स एज वेल एज लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों को ध्यान में रख के प्लानिंग करें। कुछ लोग जो है ना सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं तो आज पे जीते हैं, फ्यूचर के बारे में कुछ बचाते ही नहीं, कुछ सेविंग इन्वेस्ट करते ही नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कल के बारे में सोचते हैं, सिर्फ सेव इन्वेस्ट करते रहते हैं। अचानक से कोई इमरजेंसी आती है, फिर मामला गड़बड़ा जाता है। दोनों ही गलत है। तो करना क्या है? आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों को ध्यान में रख के प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। नंबर 1, उनके हाथ में शंख है। सो शंख का यूज कब होता था? बेसिकली कुछ डिक्लेयर करने के लिए, कुछ बताने के लिए। युद्ध में स्टार्ट होता था तो शंख बजाया जाता था, करेक्ट। तो जब फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, अगेन आपको डिक्लेयर कर देने का है। डिक्लेयर किससे करना है? अपने आप से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने कलीग से, मतलब अगर आप बिजनेस ओनर हैं अपने स्टाफ से, सबसे कर दीजिए। सो फॉर एग्जांपल आपका पैसा कहीं से आने वाला है,
आपको बोनस इंसेंटिव कुछ मिलने वाला है, पुराना कोई इन्वेस्टमेंट मैच्योर करने वाला है, ये आपको तो पता होता ही है, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके वाइफ, आपके बच्चे को भी पता होता है। तो करना क्या चाहिए, आप डिक्लेयर कर दो वो जो पैसा आने वाला है उसको मैं इधर इधर इस पर्पस के लिए लगाने वाला हूं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, आने से पहले जाने की तैयारी हो चुकी होगी। पता चला आपके बीवी बच्चे प्लान कर लिए कि एप्पल फोन लेना है, तो घर में नया टीवी आना है, तो कभी कुछ आना है, प्लान कर लेंगे, मामला गड़बड़ा सकता है। तो डिक्लेयर कर दीजिए किस चीज को किस लिए करना है, एडवांस में डिक्लेयर करके चलिए, ठीक है। सेकंड, चक्रा, दूसरे हाथ में जो है चक्रा है, वो घूमते रहता है, वो कभी रुकता ही नहीं है। सो बी ए रेगुलर इन्वेस्टर। मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, मार्केट नीचे जाएगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे, ऊपर जाएगा तो अभी नहीं करना है, इन सब चक्करों में पड़िए ही नहीं। बी ए रेगुलर इन्वेस्टर, बी ए डिसिप्लिन इन्वेस्टर, मार्केट अप हो डाउन हो हर लेवल में एंट्री लीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो लॉन्ग रन में आपको पावर ऑफ एवरेजिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। तीसरा, उनके हाथ में पुष्प है, फ्लावर। तो हम कभी भी फ्लावर कब किसी को देते हैं, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। तो अगर फिनेंशियल प्लानिंग में आपकी कोई फिनेंशियल गोल अचीव हो जाती है तो इट्स अ बिग मोमेंट फॉर यू। सो आपको उस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है। कैसे, में भी आप अपने लिए कुछ गिफ्ट ले सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर को कहीं बाहर डाइनिंग में ले जा सकते हैं, उस ओकेजन को सेलिब्रेट करना है। क्यों, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपने कुछ अचीव किया है और आगे भी और अच्छा करेंगे, आपका हैबिट डेवलप होएगा। नेक्स्ट, उनके हाथ में है गदा। गदा किस चीज के लिए होता है, पनिश करने के लिए। अगर बाय मिस्टेक कभी कुछ ऐसा हो गया और आप जो सेव इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के जरिए या किसी भी तरीके से अगर नहीं कर पाते हैं तो बी रेडी टू पनिश योरसेल्फ। आपका अपना कोई लग्जरियस चीज होगा ऐसा, वहां से कट कीजिए, बट सेविंग इन्वेस्टिंग में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। बी ए डिसिप्लिन इन्वेस्टर। एंड उनके बगल में है हनुमान जी, ही इज द संकट मोचन। उनका एक और नाम भी है संकट मोचन, करेक्ट, हर मुसीबत से बचाते हैं। सो वेल्थ क्रिएशन तो जरूरी है, वेल्थ प्रोटेक्शन भी जरूरी है। तो आपका संकट मोचन आपके साथ होना चाहिए। कहने का मतलब है लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस जरूर से रखिए। अगर वो नहीं है तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग इनकम्प्लीट है। देन नारद जी, नारायण नारायण करते करते वो विष्णु, भगवान विष्णु को पूरा स्वर्ग लोक, पाताल लोक और हर जगह का बेसिकली वो न्यूज देते रहते थे। एक्चुअली वो मार्केट से अप टू डेट रहते थे, हर जगह की खबर उनके पास थी। सो बीइंग ए इन्वेस्टर, आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप घोड़ा बेच के सो नहीं सकते। बी अवेयर कि आपका पैसा कहाँ है, क्या हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है। बी अप टू डेट विद द मार्केट। एंड अप टू डेट रहने के लिए आपको रोज 5 से 10 मिनट काफी है। आपका स्मार्टफोन या फिर एक अच्छा एडवाइजर आपका नारद मुनि का रोल निभा सकता है। लास्टली, उनके नवल से ब्रह्मा जी निकले हैं। ब्रह्मा जी को क्रिएटर माना गया है। ही इज सो क्रिएटिव, जो हम इंसान को बनाया, इस यूनिवर्स को बनाया, नदी नाले पहाड़ पर्वत, कितना जबरदस्त हर चीज को बनाया है, करेक्ट। सो फिनेंशियल प्लानिंग में आपको थोड़ा क्रिएटिव भी होने की जरूरत है। क्रिएटिव, अब इसके बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा एक दोस्त है, वो अपने फिनेंशियल फ्रीडम फंड अकाउंट कैसे मेंटेन करता मैं बताता हूं। वो 5 रुपया से लेकर 2000 रुपये के नोट एक थैले में रखे हैं। एवरी डे मॉर्निंग अपने बिटिया के पास जाता है, एक नोट निकालता है और डायरी में, वो चाहे 5 रुपया होता हो या फिर 2000 रुपया, डायरी में डेट वाइज पूरा नोट कर लेता है। एंड ऑफ द मंथ उसको सेव करता, उसको सम करता है, जो अमाउंट होता है उतना अमाउंट अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। सो दैट इज हिज क्रिएटिविटी। आप अपना क्रिएटिविटी कुछ निकालिए। सो फ्रेंड्स, आप फिनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्ट करने से पहले डिक्लेयर कर रहे हैं, रेगुलर इन्वेस्टर हैं, अपने गोल अचीव करने पे उसको सेलिब्रेट करते हैं, गलती करने पे अपने को पनिश भी करते हैं, अपना संकट मोचन साथ में लेके चल रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मार्केट से अप टू डेट है, साथ ही क्रिएटिव है। ये सारे क्वालिटी होने की वजह से विष्णु जी के चरणों में कौन है, गॉडेस लक्ष्मी, वेल्थ, जिसको हम लोग का रूप माना गया है गॉडेस लक्ष्मी को, करेक्ट। उनका एक कैरेक्टर क्या है, वो कहीं भी टिकती नहीं है। उनका एक नाम है चंचला, ठीक है, वो कहीं टिकती नहीं है ऐसा माना गया है, बट भगवान विष्णु के केस में उनके चरणों में बैठे रहती हैं।
So ये सारे क्वालिटीज को अगर आप अपनाइएगा फाइनेंशियल प्लानिंग में, तो आपके साथ भी वेल्थ जो है बना रहेगा और आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स आप टाइमली अचीव करेंगे, एंड that will called a effective financial planning for you. And at last, even Sachin and Virat had their coaches. The lesson is creating, protecting, and transferring of wealth under an able wealth coach will lead you to a new you in this year 2022. With this, I'm ending the session here. Thank you everyone for your wonderful participation. Now